عزیزان گرامی وقار، ولادت باسعادت کے احوال ہمیں ذکر کرنے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح ولادت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان عالم میں، اس فرش گیتی میں جو تشریف لائے ہیں وہ ایک الگ شان ہے، بڑی عظیم شان کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ عام بچوں کی طرح نہیں، بلکہ عرب میں اس زمانے میں کیا کیا ہوا تھا، آس پڑوس میں کیا کیا ہوا تھا، سب مجھے بتانا ہوگا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کائنات کے سب سے افضل انسان کو بھیج رہا ہے تو کائنات میں تبدیلی تو ہونا ہی ہوگی ہی، اس لیے کہ برسوں جن نبیوں نے اس رسول کے آنے کی بشارتیں سنائی ہوں، وہ رسول جب آ رہا ہو کیا ہوا جانتے ہیں؟ جس رات حضرت عبداللہ سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا، اسی رات کو آوازیں آئیں۔ یہ روایات میں موجود ہے، امام زرقانی فرماتے ہیں مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو اطلاع دی، مبارک ہو نور مصطفیٰ اب اپنی اصلی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ رجب کے مہینے میں یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، اسی دن بشارتیں شروع ہو گئی۔ اب اس کو ارحاسات کہتے ہیں۔ حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات ہوئے، پورے عرب میں ہی نہیں بلکہ کائنات میں الگ الگ حالات ہونے لگ گئے۔ جانتے ہیں حضور کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے آیا تھا، ڈھانے آیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ سورہ فیل میں پڑھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس پورے سورے میں اللہ نے فرمایا ابرہہ بادشاہ کی فوج کو اللہ نے ابابیل چڑیاں بھیج کر کنکریوں سے ہلاک کر دیا، پورے کے پورے تہس نہس ہو گئے۔ ابرہہ کی لاش نہیں ملی، سارے فوجی مر گئے، ہاتھی سکڑ گئے، ایسا ہو گئے تھے فجعلہم کعصف مأکول، ایسا اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا جیسے کھائی ہوئی نوچ کھائی ہوئی مرغی، یعنی چھلی ہوئی مرغی جس طرح دکھے اس طرح پوری فوج بن گئی تھی، سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رسول پاک کی جلوہ گری ہونے والی تھی۔ عرب میں حالات کیسے بدلے؟ موسم پورے سال کا بہت ہی خوشگوار۔ عرب پہلے قحط سالی سے جوجھ رہے ہوتے، زمینیں سوکھتی تھی، فصلیں نہیں آتی تھی، لیکن اس سال پورے عرب والے کہتے ہیں اتنی فصلیں آئی کہ ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ موسم بہار، بارشیں، خوشگوار ہوائیں، اور پورے سال میں جو سب سے حسین مہینہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ربیع الاول، سب سے حسین مہینہ۔ اس کو ربیع کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب والوں نے اس کا نام رکھا، ربیع کہتے ہیں بہار کو، جو گلابی موسم ہوتا ہے جس میں لوگوں کو اپنے سارے وسوسے، ٹینشن، فکریں ختم کرنے کا موقع ملے، سکون کی ہوائیں آتی، نہ زیادہ گرمی، نہ زیادہ ٹھنڈی، نہ بارش، جس کو آپ ساون کا مہینہ کہہ لیں۔ تو عرب میں جو پہلی بہار آتی تھی اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، سب سے پر بہار موسم۔ اسی موسم میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ربیع الاول عرب والوں کے لیے مشہور تھا کہ اس میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اب سنیے پورے حالات کیسے تبدیل تھے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے میرے آقا کے آنے سے پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے سنیں۔ رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا، اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبان سے روایات۔ حضرت بی بی آمنہ بتائیں آپ کے شکم مبارک میں جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو آپ کو کیسا لگنے لگا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اور عورتوں سے سنا تھا کہ حمل کے درد بہت ہوتے ہیں، لیکن جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا مجھے حمل کا کوئی درد نہیں تھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ پیر بوجھل، نہ قے آنا، نہ سر چکرانا۔ دنیا کی ہر ماں کو حمل کے آثار پیش آتے ہیں، یہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں، مگر کائنات کی ایک ماں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ کیوں اٹھائے؟ اس لیے کہ وہ غموں سے آزاد کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے، ہر درد سے، ہر بے کسی کی فریاد رسی کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے۔
बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जुबान मुबारक से हम रिवायात सुनते हैं। उससे पहले मशहूर मुहद्दिसीन ने जो रिवायात बयान किए हैं, फरमाते हैं कि ईरान में किसरा की हुकूमत थी। किसरा बादशाह इतना बड़ा सुपर पावर कि उसने एक महल बनाया था जिसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौज हुआ करती थी, और उसका दावा था कि इस किले को, इस महल को कोई भी टक्कर देकर गिरा नहीं सकता। बाज तारीखी रिवायात के मुताबिक जो आज मदियन सलमान पाक, जो इराक में एक शहर का नाम है, आज भी वहां वही किला मौजूद है। हम इराक जब जियारतों के लिए जाते हैं तो वो भी देख कर आते हैं। किसरा का महल उसे कहते हैं। आज अंदाजा करो 3000 साल से या 2000 साल से वो महल उसी तरह सलामत है। उस जमाने में कितना मजबूत रहा होगा, कितना पावर उसके अंदर रहा होगा। मजबूत, एक पिलर भी नहीं है, लेकिन छत आज भी खड़ी है। वो किसरा का महल था। और फिर मशहूर ईरान की एक आग थी, जिस आग की पूजा की जाती थी, और बेशुमार लोग उसके सामने नजर मानते थे, इत्तिकाफ करते थे, चढ़ाई करते थे। और वो कब से जल रही थी? 1000 साल से जल रही थी। 1000 साल से उस आग को बुझने नहीं दिया था पंडितों ने। जहां वो थोड़ी सी धीमी हो जाए, तेल डाल दें या लकड़ियां भड़का दें, लेकिन उस आग को सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी लम्हे बुझने नहीं दिया जाता था। वो आग जल रही थी 1000 साल से। किसरा का महल बड़ा कीमती, बड़ा मजबूत। और 2 नहरों के बारे में रिवायात में है। बुहैरे सावा, एक इलाका है काशान। काशान ये ईरान का इलाका है। वहां की झील, उसकी भी पूजा की जाती थी, उसको पवित्र माना जाता था। आग की पूजा करने वाले उस पानी की भी पूजा करते थे। इसी तरह समावा एक ऐसी झील थी जिसको सूख करके 300 साल हो गए थे, उसमें पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, जिस माह मुबारका में मेरे आका की विलादत होनी थी, अचानक हालात तब्दील थे। लोगों ने देखा बुहैरे सावा, जो झील पूजा की जाती थी, पुजारी दूसरे दिन सुबह जाकर देख रहे हैं पूरी झील में एक कतरा पानी का नहीं है, खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, कुछ भी नहीं है। और समावा की झील जिसमें 300 साल से पानी का एक कतरा नहीं था, रात को लोगों ने देखा, सुबह आकर देख रहे हैं लबालब पानी भरा हुआ है। इतना पानी कि किसरा के महल्लात तक आ गया। और यही वो दिन था, अचानक ईरान की जमीन पर जलजले आ गए। ऐसे जलजले आए कि अचानक किसरा बादशाह के महल के अंदर एक शिगाफ पड़ गया, एक दरार आ गई। वो दरार आज भी मौजूद है, 14 सदियों से आज भी वो दरार दीवार में है। इतनी बड़ी दरार आई कि एक आदमी उसके अंदर से पास हो सकता है, गुजर सकता है, जिसका दावा था इसे कोई गिरा नहीं सकता। अचानक शिगाफ पड़ गया, दीवार में सुराख पड़ गया, और जो कंगोरे लटकाए जाते थे वो सोने के कंगोरे होते। महल के अंदर वो सारे के सारे जमीन पर नीचे गिर चुके थे, सब नीचे आ गए थे। और जितने बुत थे खाने काबा के अंदर और दीगर जगहों पर दूसरे दिन देखा गया, सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, सब नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। ये अलग अलग हालात। आसमान में अलग सी एक बदली छाई हुई थी जिसमें ठंडी आवाजें आ रही थी। और अलग अलग अरब वालों ने उस जमाने में, उस साल क्या क्या सुना। अरब वाले कहते हैं हमने जंगल का सफर किया, जानवरों को फसी अरबी में बोलते हुए सुना है। एक दूसरे को जानवर मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हम ताज्जुब करते थे आखिर जानवरों को बोली कैसे आई है। ये अलग अलग वाकयात जो पेश आए। अब सुनो, किसरा का बादशाह जलजले की वजह से डर गया, सहम गया, बड़े बड़े काहिनों को बुलाया। ये क्या हो रहा है? पूरी कायनात में ये कैसी तब्दीली है? ईरान का बादशाह डरा हुआ है। कैसर रोम, मुल्क रोम का बादशाह ख्वाब में देख रहा है अरब के लोग ईरान के और कैसर रोम के ऊंटों को भगा कर ले जा रहे हैं। अरब के वहशी लोग, बद्दू लोग जो कुछ ज्यादा नहीं जानते, ईरान पर कैसे काबिज हो रहे हैं, रोम पर कैसे काबिज हो रहे हैं। भयानक ख्वाब था। काहिनों को बुलाया गया और ताबीर पूछी गई, ये क्या हो रहा है? जलजले आए, दीवार फट गई। आग जो 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी, आज अचानक गुल हो गई है। बहरे सावा सूख गया, झील सूख गई, समावा में लबालब पानी आया। ये अनहोनियां हमें नहीं समझ में आ रही। सारे काहिन बैठे, जितने उस जमाने के ज्योतिष रहे होंगे, नुजूमी रहे होंगे, सबों ने कैलकुलेशन किया और बादशाहों से कहा
ए बादशाह सलामत, हमने अपने हिसाब से देखा है और हमारी ताबीर जो निशाना बताती है वो वही है जिसको हम शेर में कहते हैं, आई नहीं हुकूमत, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। ताबीर एक ही लग रही है, बादशाह सलामत तुम्हारे ख्वाब की भी ताबीर यही है। कंगोरे गिरे हैं, दीवार फटी है, झील सूखी है, आग बुझी है, सबकी ताबीर हमारे इल्म के मुताबिक तो यही लग रही है। अरब में आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। ये तो मैं शेर की जुबान में कह रहा हूं। उन नजूमियों ने कहा था बादशाह से, जरूर कायनात में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिस बच्चे ने सारी सल्तनतों को हिलाना है। और बादशाहों को उसी दिन नजूमियों ने कहा था, आप खैर मनाओ, आप खैर मनाओ, तुम्हारी सल्तनतें जो 12 पुश्तों से चली हैं, ये 12 कंगोरे गिर गए, ये निशानी है कि अब तुम्हारी हुकूमतें लास्ट एंडिंग पर आ चुकी हैं, इख्तिताम पर आई हैं। बादशाह ने पूछा, क्या ये सुपर पावर खत्म हो जाएगा? जैसे अगर आज जाकर कोई अमेरिका से कहे कि तुम्हें एक छोटा मुल्क खत्म कर देगा, यहां बैठे हुए चंद मजमे आपको हिला देंगे, वो हंसेगा, बोलेगा उनकी क्या ताकत है, हमारा इतना बड़ा निजाम है, क्या क्या हमने नहीं फैलाया है। किसरा ने भी यही कहा था, रोम के कैसर ने भी यही कहा था। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ, बद्दुओं के यहां, जो अरबी लोग हैं, देहाती लोग हैं, और हम पावरफुल, उस जमाने के पाश लोग, सबसे ज्यादा उनके पास माल, सबसे ज्यादा फौज, असलहे उनके पास। उन्होंने नजूमियों को कत्ल कर दिया, मार लिया। तुम लोग झूठी ताबीर बोलते हो। बादशाह की आदत यही है, उसकी तबीयत के मुताबिक तारीफ करो तो खुश होगा। उससे सिर्फ ये पूछो बादशाह से, आप आम कैसे खाते हैं, तो तारीफ करो, खुश होगा। हर बादशाह की आदत है। इंटरव्यू लो तो ये मत पूछो नोटबंदी क्यों किया था, मत पूछो, ये सब नहीं पूछना। जॉब कहां गई, वो मार डालेगा। तुम ताबीर, ज्योतिष भी सही नहीं हो, तुम ज्योतिष भी सही नहीं। हाँ, ज्योतिष ये कहे सारे भाग खुले हुए हैं आपके, सारा सीना चौड़ा हो गया है, देखिए उनको नवाजा जाएगा। किसरा और कैसर ने, ईरान की हुकूमत और रोम की हुकूमत ने भी बेचारे नजूमियों को मार डाला। उन्होंने क्या कहा था, एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा, तुम्हारी सल्तनतें हिला दे। हक को एक्सेप्ट करो, बात तुम्हें आज या कल माननी होगी। जो अल्लाह के फैसले हैं वो नाफिज होके रहेंगे। और रसूल के मुतालिक मेरे मौला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह फरमाता है, हमने वो रसूल भेजा है, रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, यूं ही नहीं भेजा कि तुम नारे लगाते रहो। अल्लाह फरमाया लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह फरमा रहा है, सारी कायनात पर मेरे रसूल के दीन को गालिब करने के लिए भेजा। वो रसूल का दीन गालिब आएगा आज या कल, क्योंकि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं। फ्रांस में भी इस्लाम आएगा, अमेरिका में भी इस्लाम आएगा, यूरोप में भी इस्लाम आएगा। हाँ, जहां जहां मुनकिरीन होंगे इस्लाम गालिब आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो अगरचे, और अल्लाह ने फरमाया, आगे पूरी आयत पढ़ता हूं, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। हुजूर से पूछा गया, ये गालिब कब होगा? हुजूर ने फरमाया, मेरी औलाद में एक मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा। इमाम मेहदी आएंगे और उस जमाने में पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ इस्लाम होगा। और अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सुन लें, बिल्कुल सच। वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद आएगी, हाँ नापसंद आएगी, उनको बुरा लगेगा। अभी अगर मैं कहूं आरएसएस वाले भी मुसलमान हो जाएंगे, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी उनको। हो सकता है जिसको भी हम कहें उसे तकलीफ हो, लेकिन मेरे अजीजों मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान ये कह रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। इस बात के कहने पर तुम मुझे मार डालोगे, कोई मसला नहीं। जिन्होंने अपने बादशाहों को ये बताया पहले, उनको मार दिया बादशाहों ने, लेकिन बाद में उनकी हुकूमतों ने देखा, कैसर और किसरा भी गिरफ्तार होकर गुलामाने रसूल के कदमों में आ गए थे। और जानते हो, इस शान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 2.5 साल बाद, 5 साल बाद समझ, वो
जलाल आवर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला जब मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए, अपनी फौज को किसरा के पास भी भेजा, रोम भी कैसर के पास भी भेजा, और दोनों जगह भी फतेह हुई। और ये गुलामान रसूल जिनको कैसर और किसरा क्या कह रहे थे, एक बच्चा पैदा हुआ हिला देगा, नजूमियों को मार डाला, और उसी रसूल के चंद गुलामों ने उनके तख्तों को हिला दिया, कुर्सियां हमेशा के लिए खत्म हुई। मुझे तारीख बताओ, ईरान और कैसर रोम जब ये खत्म हुए, आज 14 सदियां हो गई, दोबारा ना किसरा आया ना कैसर आया, नहीं आया। उनका खात्मा होना था, हो गया। अजीजा ने गिरामी वकार, इस शान से अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को फतह दी। मस्जिद नबवी में माले गनीमत लेकर के आए और उसमें कालीन लेकर आए जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सियां लगती थी, उस जमाने का महंगा कालीन जिस पर बैठ जाए तो लोग दुनिया में फख्र करते थे। मैं किसरा के कालीन पर बैठ कर आया हूं। जब किसरा का सब दरबार खत्म हुआ, माले गनीमत मदीना तैयबा साहबा ले आए, हजरत उमर से पूछा बहुत महंगा है दुनिया का, उस महल की सबसे कीमती चीज हम ले आए, इसको कहां सजाएं? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखो, हर आदमी पैर पोंछकर अंदर आए, पैर पोंछकर अंदर आए। इसलिए कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया को ये बताना चाहते थे, वो कैसर और वो कैसर रोम, वो किसरा ईरान, तुम जिस पर बैठकर फख्र करते थे, ये फख्र करने वाला कालीन गुलामान रसूल के तलवों के नीचे हुआ करता है। जब तुम इश्क मुस्तफा में कामिल होंगे, इंशाअल्लाह अजीज उनकी कुर्सियां तुम्हारे जेर कदम आएंगी, हम भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ गुनगुनाया गया था जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह अजीज। रब ने अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम भी देखेंगे, और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह अजीज, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम गालिब आएगा, वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिर ना पसंद करें, अगरचे मुशरिक ना पसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाकयात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैर सावा, बुहैर समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई। उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार में बता रहा हूं, निहायत ही अदब एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे निहायत ही अदब एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मर्तबा देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, रमजान का महीना आया, रमजान का महीना जैसे ही आया, हजरत बीबी आमना ने आवाजें सुनी, कहा गया आमिना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमजान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हजरत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वह
अअलमहा बिरुतबति सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद व बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, जिलकादा का महीना आया। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं हर माह में मैं किसी नबी की जियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। जिलकादा गुजरा, जिलहज्जा आया, जिलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमले पाक को सफर के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफर का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमिना कहती हैं मेरे बतने पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमिना फरमाती हैं सफर के महीने में जो चीजें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी। यहां तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नजर करती तो बदलियां मुझे नजर आती और उसमें बात करने की आवाजें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफर के महीने में हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं अजीबो गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे असीसो, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हजरत इब्राहिम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और कायनात में होने वाले अजीबो गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमिना फरमाती है अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमिना फरमाती है रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहां तक के रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए हैं और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमिना फरमाती है मैं ये 2 रोज कब्ल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहां तक के 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब और गरीब बातें सुनी, अजीब और गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमिना रब्बा तआला अन्हा मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई, यहां तक के सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती है मैं मक्का में सोई हुई थी लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी, शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमिना फरमाती हैं 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहां से मक्का से बसरा काफी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, इतनी दूर तक बीबी आमिना देखती रही। रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे, वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमिना की कैसी शब रही होगी अंदाजा तो करो। हज़रत आमिना फरमाती है मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफे नजर आई, जिब्राइल कह रहे हैं ऐ मलाइका सफे बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है, सफे तरतीब दी जा रही है, सबके हाथों में मिशाले हैं। और अचानक बीबी आमिना फरमाती है 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हजरत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हजरत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा, काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी, मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ
खुश किस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन दो झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत पे कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूं न शबे कद्र वहां को पहुंचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती है सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है, दर्द सह जिसको कहते हैं, वो तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही है मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाजा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन और जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिरानी के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमिना फरमा रही है ऐ आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ऐ आमिना न घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन है तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवाती बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई है। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई है, बीबी आसिया दाया बनकर आई है। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई, जब मैंने आंखें खोली